والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے عزیز بچوں اور بچیوں اور آئے ہوئے معزز مہمانان کرام، آئے ہوئے معزز مہمان کرام، آج اس بنات کا یوم تاسیس ہے اور یہ ادارہ جو قائم کیا گیا ہے، یہاں علم و ادب سکھایا جاتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ یہ مدرسہ نہیں، یہ میں کدا نہیں، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کے تعلیم و تربیت کا نظم و بسط یہاں کیا گیا ہے۔ لوگوں نے بڑی جد و جہد سے اس ادارے کو قائم کیا ہے اور آج الحمدللہ یہ ادارہ اپنے شباب پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے اور یہاں کے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور جہان کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی زندگی میں بھی ان کو فوقیت عطا فرمائے۔ میرا موضوع تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے۔ آج میں سیرت کے حوالے سے آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نماز میں سنتیں بتائی ہیں ہم ان کو ادا کریں، یا سیرت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ جب تم پر مصیبت آئے کہ تم مسجدوں کو جا کر دعائیں کرو، یہ صرف سنت میں داخل نہیں ہے، بلکہ سیرت یہ بھی ہے کہ اپنے آل و اولاد، اپنے سماج، اپنے معاشرے کو مہذب بنایا جائے، تعلیم یافتہ بنایا جائے، اور سیرت یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کو درست کیا جائے، اور سیرت یہ بھی ہے کہ اپنے کیریکٹر کو صحیح کیا جائے، اور سیرت یہ بھی ہے کہ جب ہم آپسی معاملات کریں، جب ہمارے آپسی معاملات ہوں تو ہم معاملات میں صاف ستھرے ہوں۔ سیرت یہ بھی ہے کہ جب ہم بھائی بہن کے حصے کی باری آئے، بٹوارے کی باری آئے، تو اس میں بھی ہم چوکس اور چوکنا ہوں، جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ چوتھے پارے سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں کا بھی حق بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنوں کا بھی حق بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حقوق کو بیان کیا ہے جو بہن بھائی سے متعلق ہے، ماں باپ سے متعلق ہے، دادا دادی سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے صرف سیرت یہ نہیں ہے کہ نماز میں جا کر کے ہم دعا کر لیں اور اٹھ کر کے چلے آئیں، سیرت یہ بھی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارا اس دنیا میں جو کرنا ہم جو کر رہے ہیں وہ کرنا کیا سیرت کے زمرے میں آتا ہے یا اس سے باہر آتا ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ آپ سیرت یہ بھی ہے کہ آپ امانت کی ادائیگی صحیح طور پر کریں۔ جس طرح سے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ یہاں اپنی تیاری میں پورے جوش و خروش سے لگے، آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور تمام قوم ملت کی بہتری ہوگی اسی میں۔ میں ایک شعر کہتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے،
पर बैठकर क्या आसमान देखता है। भाइयों बहनों बच्चों, आज जो आप यहाँ जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं ताकि इस महफिल से जो आपको बातें बताई जाए आप उसको अपने कल्ब और रूह में बसाएं और बसा करके आप उस पर अमल करें और अमल करके आप अपने आप को दिखाएं कि आप कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। वरना आज मुसलमानों की हालत, मुसलमानों की ज़बूनी हाल, मुसलमानों की ज़बून ये है कि मुसलमान हर तरह ज़लील व ख़ार हो रहे हैं और मुसलमान जब तालीमी बेदारी अब उसमें पैदा की जा रही है और जब उनको तालीम के लिए आशा किया जा रहा है, जब उनको तालीम की तरफ दावत दी जा रही है तो ये इतना लेट हो चुका है कि बयानी शेर का मिस्दाक है कि वो एक फल था जो अपने तोड़ने वालों से बोल उठा, अब आए हो, कहाँ थे, खत्म है जब जायका मेरा। और एक बात आपको बता दूं कि जो अपने वक्त की अहमियत और पाबंदी को समझता है, जब तालीम में आप लगे हैं और उस तालीम में आप पूरे अमानत के साथ लगे हैं, ये सीरत का एक पहलू है, ये सीरत का एक हिस्सा है कि हमारे नबी ने ये बताया कि वक्त को ज़ाय न करो। वक्त के बारे में कहा जाता है कि अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हब, कि वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। हम आपको बता दें कि जिसने वक्त की कदर नहीं की उसके लिए एक शेर है कि अदालत तो नहीं, हाँ वक्त देता है सजा सबको। अदालत तो नहीं, हाँ वक्त देता है सजा सबको। यही है आज तक इस जिंदगी में तजुर्बा मेरा। मेरे भाइयों दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे और कहाँ न पहुँचे। बात ये है कि आज जो मुसलमान पस्त से पस्त होते जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम न तालीम में आगे हैं न तरबियत में आगे हैं। जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने सहाबे किराम को मुरस्सा किया था, मुसज्जा किया था और उनको जिंदगी जीने के तरीके बताए थे कि देखो जब भी तुम जिंदगी जीना तो इस तरह से जीना जिस तरह से मैंने तुमको तरीका बताया है। आज एक बच्ची खड़ी होकर तकरीर कर रही थी और वो कह रही थी कि सूरह बकरा में ये आयत है कि ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल होने का मतलब ये है अपने जिस्म जान रूह को उसके लिए कुर्बान किया जाए। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदियां बताई हैं उस पर अमल किया जाए, जिन मनहियात से रोका है उनसे रुका जाए, जिनको करने का हुक्म दिया है उनको किया जाए। मुसलमान आज सबसे बड़ा जो पस्ता कद हुआ जा रहा है उसकी वजह यही है कि मुसलमान ने अपने नबी की सीरत को नहीं जाना। मुसलमान ये समझता है कि ईद मिलादुन नबी मनाना सीरत है, लेकिन नहीं। आज जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है वो इस बात की है कि देखिए आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, आपके माँ बाप ने आपको यहाँ फारिग करके तालीम के लिए भेजा है, आप उस पर अमल करें। यही सबसे बड़ी सीरत है आप तलबा के लिए। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि मुसलमान जो आज पस्ती में जा रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वक्त की पाबंदी न करना नहीं है, बल्कि वो तमाम चीजें हैं कि कुरान करीम ने जिन चीजों के बारे में कहा है उन पर अमल नहीं कर रहे और जिन चीजों के बारे में कुरान करीम ने मना किया है वो सरासरी उसके तरफ चले जा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि एक शेर है कि या वुसाते अफलाक में तकबीर मुसलसल, या वुसाते अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात, वो मसल के मर्दान खुदा गाह खुदा मस्त और ये मजहब मुल्लाओ जमादाद व नबातात। वो तकबीर कौन सी है जो मुजाहिद तकबीर करता है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करकस का जहां और है शाही का जहां और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। मोहतरम सामईन, आज हमें इस बात की जरूरत है कि जिस तरह से हमारे कलम में मजबूती हो, जिस तरह से हमारे दिमागों में सलाहियत हो, उसी तरह हम जिस्मानी एतबार से भी मजबूत हो कि जब कभी हमें ऐसी जरूरत पड़े इस्लाम के खातिर लड़ने का, अपने देश के खातिर लड़ने का, हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस बात का अहद करते हैं कि सीरत ने हमें यह भी सिखाया है कि जिस मुल्क में तुम रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो और जब कभी उस मुल्क पर आंच आ जाए तो
तो अपने आप को झोंक दो और ये समझो कि हमारे नबी ने इसी बात का हुक्म दिया था कि अपने मिट्टी से मोहब्बत करो और अपनी मिट्टी के लिए जान भी कुर्बान करो। सामईन किराम, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत कम वक्त है, मुख्तसर बात यह है कि आप अगर तैयार नहीं होंगे तो आप ये समझें कि आपकी बर्बादी फिर कहीं नहीं गई है, आप बर्बाद होकर रहेंगे अगर आपने सीरत के इन तमाम पहलुओं को कवर नहीं किया। इसलिए मैं एक वाक़या आपको सुना करके ख़त्म करता हूँ, अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि हम जो आज अल्लाह के रसूल को पैरोकार कहलाते हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले कहलाते हैं, आप ये समझिए कि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि अल्लाह के रसूल ने तालीम के लिए जंगे बदर के कैदियों को ये हुक्म दिया था कि जो तुम में से पढ़ा हुआ हो वो हमारे 10-10 आदमी को पढ़ा देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तालीम की अहमियत ये थी। उसके बाद जब सहाबा आए तो सहाबा ने तालीम की अहमियत को समझा, तरबियत की अहमियत को समझा। फिर सहाबा ने अपने बाद के लोगों की तरबियत की और ऐसी तरबियत की कि एक शख्स तारिक बिन ज़ियाद नाम से आपने सुना होगा कि तारिक बिन ज़ियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गिरवीदा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ऐसा अमल करने वाला शख्स कि जब वो उठा और उठ करके अंदलुस की तरफ गया लड़ने के लिए इस्लाम की खातिर, तो जब वहां तक गया तो जब वो नदी के इस पार था तो उसने एक ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली तमाम के तमाम उनके साथ में दरिया पार कर रहे हैं और वो दरिया पार कर गए। तारिक बिन ज़ियाद ने जो कश्ती चलाई थी वो ये समझ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बात की खुशखबरी दे रहे हैं कि हम अंदलुस को फतह कर लेंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने जब कश्ती चलाई तो उस जगह पर अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि तारिक चूम पर किनारे अंदलुस सफीना सोख गुफ्तन कार तू बनिगाह फिरत खतास दुरवेम अस्वादे वतन बाज चूरसे तरके सबब ज़जूए शरीयत कुजास। ये बात कही थी तारिक बिन ज़ियाद के मानने वाले तारिक बिन ज़ियाद के सिपाहियों ने कि तुम जो इस पार आए हो तुमने कश्तियां क्यों जला दी। सबब को जलाना इस्लाम तो नहीं कहता, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने अपने तलवार को लहराते हुए कहा था कि सुनो, हमने ख्वाब देखा है और ये देखा है कि अल्लाह के रसूल हमें खुशखबरी सुना रहे हैं और हम अल्लाह के रसूल के साथ दरिया पार किए हैं। चुनांचे जब हम यहाँ आ गए हैं तो फतह कर ही के जाएंगे। और तारिक बिन ज़ियाद का जज्बा देखिए कि तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस को फतह किया और मुसलमानों ने वहाँ 850 साल तक हुकूमत की। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को तैयार कीजिए। ज़माना तो ये देख ही रहा है कि मुसलमान किस तरह पस्ता कद हो, किस तरह मुसलमान पस्ती में जाए, लेकिन आप अपने जज्बे को उभारिए, अपनी पढ़ाई में लगिए और अपनी तरबियत करवाइए। आप अपने उस्ताद से सीखिए और सीखने के बाद उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप तरक्की करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका कारसाज होगा। कहते हैं कि बुत सनम खाने में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए, मंजिले दह से ऊँटों के हुदी खान गए, अपने बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदसन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ तुझे पास है कि नहीं। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। इस शेर में दो चीजें बताई गई हैं कि आप जब इस्लाम के लिए आगे बढ़ेंगे, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो सकती है, लेकिन उन परेशानियों से डरना नहीं है कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदाबांदी है, बरसात थोड़ी है। ये जो लोग परेशान कर रहे हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। ये राह इश्क है यानी अल्लाह के रास्ते में चलना, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।